अस्सलाम वालेकुम सबको वेलकम करने जी मेरी पंजाबी ते बहुत छुट्टी पुट्टी है ते मैं बस वेलकम करना चाहना सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ STKC Southall ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ we are very proud that ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ here in London, Birmingham, Manchester 20 ਤਰੀਕ को 21st and 22nd London Slough ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ Center 20th of November Saturday is in Birmingham and Sunday is in Manchester and you open the floor to questions and hopefully they will give you answers and tell you a little bit about their background so please feel free. But before that, I will ask a colleague of mine, Shakil, to say a few words in Urdu to welcome our artist here today. And before I say that, I might say, Mr. Salim Sheikh, thank you very much for organising the press conference here this afternoon. We've collaborated with Moviebox to bring you this event, and together we are putting this event on here in Slough. So, Mr. Shakil, just a few words in Urdu from you, please. Thank you. Muazzaz Khawateen wa Hazrat, Ladies and gentlemen and all the press and media, السلام علیکم. آج ہمارے لیے ایک بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فوک جہاں سے چلا اور وہاں سے کتنے آرٹسٹ ایک فوک سنگر کو دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں, اس سے انسپائر ہوتے ہیں, گاتے ہیں اور زندگی میں اپنا نام بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے پاس آج جو شخصیت پاکستان سے تشریف لائی ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں اور میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں. میں جو کچھ بھی گاتا ہوں تھوڑا بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لیجنڈس ہیں پاکستان کے ان سے انسپائر ہو کر ہم گاتے ہیں, ان سے سیکھ کے گاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں وہ وائس آف پاکستان, پرائڈ آف پاکستان, کنگ آف فوک جناب شوکت علی صاحب اور ان کے ساتھ میلڈی کوئین سروں کی ملکہ جناب شازیہ منظور جنہوں نے یہاں پہ بہت سارے کانسرٹس کیے, ویمبلی ایرینا میں بھی پرفارم کیا اور چونکہ ہمیں بہت کم چانس ملتا ہے لوگوں کو سننے کا, دیکھنے کا اور یہ لوگ بھی اتنے مصروف ہیں کہ یہ پاکستان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ لانا کتنا مشکل ہے. یہ صرف مووی باکس کامران بھائی اور ریسی جانتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے اپنے فن سے پیار کرتے ہیں اور انہیں ایک شو بز سے اور ان کو نام سے اتنا شوق نہیں ہے جتنا ان کا فن کے ساتھ اپنا پیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پاکستان کی میوزک انڈسٹری کے لیے, پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور جتنے بھی آرٹسٹ آ رہے ہیں ہو پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جو ان کو دیکھ کر گاتے ہیں, جو ان سے انسپائر ہو کر گاتے ہیں اور ان کی کاپی کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ جن کو وہ کاپی کرتے ہیں وہ لیجنڈس پاکستان سے ہیں. آل دا وے فرام لاہور جناب شوکت علی صاحب اور شازیہ منظور صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں ایز اے سنگر. میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج مجھے یہ موقع ملا 2 لفظ کہنے کے لیے. میں اپنی خوشی کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتا. یقین کریں کہ جن لوگوں کو میں نے ساری عمر اسکرین پہ دیکھا, ریڈیو پاکستان پہ سنا, آج وہ میرے سامنے روبرو موجود ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آل دا پاکستانی میڈیا, آل دا پریس کہ ہم ان کی جتنی عزت کریں, جتنی قدر کریں, جتنا بھی ان کو پروٹوکول دے سکیں خدا را دیجیے گا کیونکہ یہ دے ڈیزرو دا بیسٹ. سو میرے لیجنڈس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. تھینک یو. Shakil Saab, thank you very much indeed. Raji, aage chalte hain. We open the floor to the press for any questions for our guests here today who are about to embark upon a 3-city tour across the United Kingdom. We welcome them and hopefully the media here will also welcome them with open arms. Any questions you have for our guests here today, please feel free. Loji. Ji, mera naam Wajahat Ali Khan hai from Roznama Hafle. میرا سوال شوکت علی صاحب آپ سے ہے. ہم کئی دہائیوں سے آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, ریڈیو پہ اور کنسرٹ بھی آپ کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ سے بہت بعد میں آنے والے جو فنکار ہیں, جو گانے والے, انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا, انہوں نے بینڈ بنا لی ہے, ان کی اپیرنس بھی
काफ़ी चेंज हो गई, क्या वजह है कि आपकी अपीयरेंस भी वही है जो आज से 30 साल पहले थी या उससे पहले थी, और आपका स्टाइल भी बिल्कुल वही है, आपने अपने आप को बदलते हुए वक्त के साथ साथ तब्दील क्यों नहीं किया? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। शौकत अली दे भाग चंगे ने कि तुसी आप इस गल नूं तस्लीम कीता है कि मैं जिस माँ दे गुड़ती दित्ती एज ने ਉਹਦੇ 'ਚ कोई तब्दीली नहीं आई, लिहाजा अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे। तुसी इन्ना कुछ प्यार दिता है कि मैं समझिया है और मैं समझना वा कि मेरी इसे च इज़्ज़त है कि मैं सादगी दे नाल जीवां और सुफे कराम नूं गावां और अपने भैणां भरावां नूं गाना सुनावां। वक्त दे नाल नाल मैं नहीं बदलिया और ये मेरे वास्ते बड़ा एहसान है पाक परवरदिगार दा। मैनू बहुत खुशी हो रही है इस जगह ते बैठ के, साउथ हाल च बैठ के, कि मैं फर्स्ट जिंदगी जदों मैं आया तो इट वॉज 1970 17 अक्तूबर 1970 मैं लंडन पहली दफ़ा आया और ये साउथ हाल दे विच मेरे मोहसिन मेरे दोस्त बड़े बड़े आर्टिस्ट इस मुल्क च आए ने और जिहड़े साउथ हाल च नहीं आए वो मैं समझना वो बदकिस्मत ने, चूँकि जिथे तुहाडे जैसे लोग फनकार नवाज होण मुहब्बत करने वाले होण उन आर्टिस्टां नूं फ़ायदा उठाना चाहिए। तुहाडे जैसे हस्तियां सिर ते रखण अल्लाह ताला। मैं इत्थे मेरे करीब ही मेरे दोस्त ने फिदा हुसैन भट्ट साहब खुद भी बहुत सुरीला गाते ने, नाल ही उन्हों की जगह है। तो इस तरह मैं जदों पहली दफ़ा आया 82 मेरे बेटे का ओपन हार्ट सर्जरी सी, कुछ बाईपास सी, मेरी वाइफ सी तो मैनू जेडे बंदे लैन वास्ते गए सन वो साढ़े एक दोस्त ने चन्नी गाने वाले नहीं दूसरे इत्थे ही रहिंदे ने और भाजी मंजीर और फिदा हुसैन भट्ट साहब, यही बंदे लैन आए सन। अज भी वो मेरे भरा ने, अज भी वो मेरे दोस्त ने। मेरे गाने दे विच ये है कि मैं अपने सूफियाना कलाम और अपने अंदाज नूं छड्डिया नहीं। मैं उसी तरह मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम पढ़ना जड़ा अज तो मैं 40-50 साल पहलों पढ़ता सा, सिर्फ उहदे च तब्दीली ये की है कि अल्लाह ताला ने जड़ा मैनू सोच दिता है वो पहले नालों भी ज़्यादा मेहरबान हो गया। तो जनाब अली मैं खुशकिस्मत हाँ कि मैं 13 साल 13.5 साल बाद आया इस मुल्क च। और मैंने एक बंदे ने पूछा 13-13.5 साल की करता रहा? मैं कहा यार शरीक हयात का ख्याल रखता रहा, 13 साल मैं उन्होंने दे दिते ने और बाकी ज़िंदगी भी इंशाल्लाह उन्होंने देंगा। तो बाकी ये है कि मैं खुशकिस्मत हाँ कि मूवी बॉक्स वालियां और जनाब रेश साहब नूं और सानू उन्होंने कहा कि ज़रूर आओ तो मैं आ गया। और मैनू खुशी इस गल की है कि एडी सुरीली आर्टिस्ट पाकिस्तान की ये ट्रैवल कर रहा तो मैनू बहुत खुशी हो रही है। ये बड़ी बात है और मेरी छोटी बहन है, अल्लाह ताला इनू कामयाब करे। और जितने प्रोग्राम हो रहे ने इंशाल्लाह होने ने वो मैनू उम्मीद है कि पाकिस्तान का प्रेस सारा अज मेरे कोल बैठा है, सारा प्रेस क्लब जड़ा है वो इत्थे बैठा है। मेरी खुशकिस्मती है कि जिस तरह तुसीं मैनू मिले हो अल्लाह ताला तुहानू सदा सलामत रखे। शौकत साहब मेरा ताल्लुक तकबीर टीवी और डॉन न्यूज़ के नाल है ते तुसीं ये दसो कि अज असीं देखने पे हैं कि क्लासिकल वाल दोबारा लोग आ रहे हैं, तुसीं समझदे हो कि हुण वाकई ही क्लासिकल का दौर दोबारा आ रहा है? गुजारिश है कि क्लासिकल बेसिक चीज़ है, क्लासिकल बहुत आला इल्म है और बड़ा मुश्किल इल्म है। कुछ लोग फैशन के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल करते हैं क्या, मगर क्लासिकल आना बड़े घट लोगों के नसीब है जी। हुण कई लोग ने एक सरगम याद कर ली उन्होंने कहता, वह मतलब ये नहीं कि उन्होंने क्लासिकल आता है। क्लासिकल सलामत अली खां तो नहीं जम सकता रोज़ रोज़, या अमानत फतेह अली या नुसरत खान, बड़े गुलाम अली खान साहब, रोशन आरा बेगम जी, ये लोग जड़े ने सही क्लासिकल सिंगर सन। बाकी फैशन के तौर पर ये करते हैं लोग। हुण सानू ये वेख के असी बचपन ही सी घर दे विचों सानू
ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਠਾਠ 'ਚ ਤਰਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਠਾਠ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਠਾਠ 'ਚ ਕੀ ਮੂਡ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ फैशन है। कोई बात नहीं, कर देते, छोड़ दे, बैठो बैठे। सर मेरा नाम राजा फैसल खान जी उस मुर्तज़क है। मेरा सवाल ये है कि आपने अपने वक़्त से अपना लोहा मनवाया है और जो आपका गाना आया था मेरे शौक का नहीं इस बात गुलाम अली साहब ਦਾ ना ना आपका तो वो मेरा हाल ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? आपके बाद लोग बहुत आए, जी रिकॉर्डिंग कराई, आवाज़ की, ख़त्म हो गए। उसकी क्या वजह कि लोग आते तो हैं आगे चल नहीं पाते। ये सीखना बड़ा लाजमी है, अदब बड़ा लाजमी है। म्यूज़िक जो है वो सैयद फ़कीर की दुआ से, माँ बाप की दुआ से, बहन भाइयों की दुआ से और आप जैसे बड़े लोगों की दुआ से आता है। और वो 4 दिन की चांदनी है, ये जो जिनकी गर्दन में सरिया है उनको गाना नहीं आता, वो फॉर द टाइम बिंग होता है। मेरे पे ये बड़ा अल्लाह का करम है कि मेरा बेटा मोहसिन अब्बास है, मेरा बेटा अली अमीर है, मेरा बेटा इमरान है, तीनों बेटे हैं। और ये मेरी गैरत को ललकारते हैं जब ये गा रहे होते हैं ना, तो मैं कहना है मैं अलेगा, मुझे ये लोग ज़िंदा रखने वाले मेरी औलाद है। चूँकि बहुत अच्छा गा रहे हैं तो लिहाजा मैं अभी तक कुछ न कुछ करता रहता हूँ। खादिम नासर निगार से तल्लुक़ है मेरा। जी बिस्मिल्लाह। सवाल ये है कि जैसा अभी आपने फरमाया है कि आपके तीनों बेटे माशाल्लाह गा रहे हैं, जी उनमें अच्छा नाम यूरोप में किया है उन्होंने, आपके नक्शे कदम पे चले हैं। तो कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान में नई नस्ल जो है उसको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए आपने कोई अकेडमी वगैरह या कुछ ऐसी लेसन देने के बारे में कुछ? बड़ी बड़ी ख्वाहिश है जी। हुकूमत से इस्तदा करते रहते हैं कि कोई एकेडमी बने। बल्कि शाजिया को अल्लाह ज़िंदगी दे, एक बात अभी मुझसे ये कर रही थी कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, हम भी पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो आप हुकूमत से ये करें कि सालाना तौर पर एक फोक फेस्टिवल हुआ करे। मैंने कहा नहीं को सुनता, जितने जितना सुनते हैं, जितने जितने कान हैं उतने उतने तो सुनते हैं, मगर कोई सच्ची बात है कि इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं। आजकल वही ज़माना है जो आप देख रहे हैं। अब जो शलवारें कमीज़ें पहनने वाले थे उनको जीन पूरी नहीं आती, ना वो गिटार पकड़ना आता है, मगर करते हैं और वो बेहतर है। क्यों जी? सब ने जीन पहननी शुरू कर दी, बैठ के वो तबला भी नहीं बजा सकते। जी सर। नहीं, वो तो बात आपने बजा फरमाई है, लेकिन मायूसी जो है ये गुनाह है। तो क्या आप लोग जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं? जी अगर सर। हुकूमत नहीं कर रही तो क्या हम- आप फनकार जो है वो इकट्ठे होकर हुकूमत को डिमांड करें, ये अल्लाह का कि करम हमारी है। ये डिमांड है, ये आप पूरा करें। आपका फनकार जो है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हिम्मत वाला है, जिस हालात में भी है वो अपने काम में बड़ी दिलचस्पी लेता है। फनकार तो उनमें कमी कोई नहीं, मगर जितना जितना को कर सकता है हुकूमत भी करती है, मगर जितना करना चाहिए ना। अब वो अभी 5 साल का जो बच्चा क्लासिकल गाता है हिंदुस्तान में, वो 15 साल की उम्र में क्या गाएगा? सुभान अल्लाह होगा। हमारा 5 साल का बच्चा जो है उसके लिए माँ बाप के पास फीस नहीं होती कि वो स्कूल जाए, एजुकेशन ले और सुने। बड़े बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला करेगा आपकी दुआ से, और आएंगे बच्चे, आप सुनते रहेंगे, इन बच्चों को भी सुनेंगे। और बच्चे भी बहुत बहुत आजकल बहुत अच्छा गा रहे हैं लड़के। ये जो आजकल कंपटीशन होते हैं टेलीविज़न पे, उसमें हमारे बच्चे हैं जी, वो भी। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। मेरा सवाल शादी से है गुलाम शहनवान फ्रॉम 92 जी सर। हम देखते हैं कि जैसे आप देर से गा रही हैं और
बिल्कुल सादगी से आपका सारा लिबास हर चीज़, लेकिन आजकल जो नई गुलकाराएँ आ रही हैं वो ज़्यादा जो है वो नाचने टापने पर और जो वल्गर ड्रेस वगैरह करके वो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं। जी सर। और आप इस हवाले से आप किसको देखती हैं, अपना सक्सेसर कौन है, मतलब कौन जिसको आप भी जिसको टीच कर रही हैं या जो इस हवाले से जो सूफीज़्म है इसको प्रमोट करें? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मौका मिला पहली दफ़ा बात करने का। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, हमारा मीडिया जो कि इस वक्त हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि आज़ाद है। और जिस तरह सवालात यहाँ हो रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं 2000 में आई थी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी हुई थी। उस वक्त इतने क्वेश्चंस नहीं थे, तो जब शौकत साहब से सवालात हो रहे थे तो मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, मैंने कहा अब मेरी बारी भी आने वाली है और मीडिया आज़ाद है, अब पता नहीं क्या होगा। तो सर सबसे पहले तो ये कि मेरा कंपटीशन जो है, सक्सेसर जो है, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ बता सकूँ, क्योंकि मैंने निसार बज़मी साहब के साथ भी काम किया है, मैंने प्लेबैक सिंगिंग में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, अशरफ साहब के साथ वजात अत्तरी साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। मुझे बज़मी साहब ने एक बात की थी कि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो सर नीचा करना पड़ता है, और अगर आपका सर झुका नहीं होगा तो आप नीचे गिर जाएंगे। और मुझे जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, मुझे तब से ये लग रहा है कि मैं पहाड़ी चढ़ रही हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कहीं पहुँच गई हूँ, और जब कहीं मैं पहुँच जाऊँगी तो वो मेरी मौत होगी, क्योंकि मैं किसी को ना बता सकती हूँ ना मैं अपने आप को इस काबिल समझती हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, जिसका क्रेडिट मैं मूवी बॉक्स को ज़रूर देना चाहूँगी, रेसी को ज़रूर देना चाहूँगी कि मैं एक लिविंग लेजेंड हमारे जो साथ बैठे हैं। अभी हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो वो कह रहे थे जी विरसा गाते हैं। मैंने कहा सर, या विरसा गाया जाता है या विरसा बनाया जाता है? इन्होंने विरसा बनाया है सर, हम लोग तो वो हैं जो फॉलोअर्स हैं। और जैसे अभी बात कर रहे थे, सर भी बात कर रहे थे कि एकेडमी की बात हो रही है, तो सादगी का जहाँ तक मुझे पहले भी क्वेश्चन हुआ था सादगी का कि जी आप हैं कि ये बनावट है, तो सर अरूज जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को है। हमेशा इंसान औकात में रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो मैं हूँ, जिस तरह मैं हूँ, उसी तरह आप लोगों के सामने आऊँ। मुझे 2000 में किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन कर दिया था, जी हम तो सोच रहे थे आपने साड़ी पहनी होगी, डायमंड पहने होंगे। आप यकीन कीजिए उस दिन भी मैंने जॉगर्स ही पहने हुए थे, बैग मेरा स्कूल की तरह उस दिन इसी तरह लटका हुआ था, और चेहरे पे कोई मेकअप नहीं था। अगर मैं आप में से हूँ तो मुझे आपकी तरह ही नज़र आना है, और अगर मैं आप में से नहीं हूँ तो फिर आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ये आपसे भी है और शौकत साहब से भी है कि आप क्या समझते हैं कि अच्छे गुलकार में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको गुलकार होना चाहिए, उसके बाद जो अच्छा गुलकार होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब बड़ों के पास बैठते थे, मैंने जब गाना शुरू किया तो मुझे कहा जाता था सुबह रेडियो 9 बजे पहुंच जाएं। ये 92-93 की बात मैं सर कर रही हूँ, तो मैं 9 बजे पहुंच जाती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत इंडस्ट्री में ही ख़राब हुई, मैं 2 बजे आने लग गई, 3 बजे आने लग गई। हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अपने आप को पीछे करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज़िंदगी तब आगे लेके जाती है जब आपकी स्ट्रगल जो है डबल होती है। डबल स्ट्रगल के साथ ही आप किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था सर, प्लीज़ आप रिपीट कर दीजिएगा। अभी आपने क्वेश्चन पूछा। मैंने ये पूछा था कि अच्छे गुलकार में जो खसूसियत है सर वो ये है, एक तो उसकी आवाज़ होनी चाहिए, दूसरा उसको अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन होना चाहिए। रास्ते बनाने वाली ज़ात वो खुद है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती के साथ बात करते हुए दुख तो लगता है, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ज़रूर है हमारे लिए कि हमारे वहाँ पर इस तरह से म्यूज़िक रिलीज़ नहीं हो रहा, म्यूज़िक के ऊपर काम नहीं हो रहा। लेकिन फॉर्चुनेट बात यह है कि पूरी दुनिया में हमारा आर्टिस्ट काम कर रहा है, वो किसी भी शक्ल में है। हमें सिर्फ उस पर थोड़ा सा फर्म स्टैंड लेने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल भी मायूस नहीं हैं, और इंशाअल्लाह ताला वापस जाते ही
एक बहुत अच्छा प्रपोजल हम रखेंगे सबके सामने। खान साहब हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे, ये हमें भी सिखाएं और नई जनरेशन को भी सिखाएं। और सीखने के लिए सर बादम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बड़े कहा करते हैं कि अगर आपने कोई काम करना है, कोई बात करनी है, कुछ करने से पहले अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो दीवार से मशवरा करो। यही एक तरीका कार है। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि गाने वाले में एक तो इज्ज़ हो, वो जितना आजिज़ होगा अल्लाह ताला उतना ही कर्म करेगा। दूसरी बात ये है कि उस शख्स को अल्लाह ताला आवाज़ कलाम दे और वो बड़ों की कदर करे, और अगर उसको मौला चांस दे तो तबीयत ख़राब ना कर ले जल्दी, तो वो लोग तो ज़िंदा रहते हैं। मैं जो अर्ज़ करता हूँ कि मैं 1970 से शुरू हुआ हूँ यहाँ आना, और आप लोगों की मोहब्बत का सदका मुझे बड़ी 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 दफ़ा आने को, और गाने सुपर हिट हैं और सारे हिंदुस्तान, अल्लाह का ये करम है कि मेरे गाने जितने भी हैं वो मैं वहाँ से सुनता हूँ। उन अपने गायक कलाकार जो वहाँ के हैं वो गाते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मेरे मुल्क का ये आपका सदका है, ये मेरे मुल्क का सदका है कि मुझे दुनिया गा रही है। आज शादिया मंजूर को जब लड़कियाँ गाती हैं तो हमें खुशी होती है। मैं भी लड़की हूँ। जी सर। जो एक गाना था वो आलम लोहार ने पढ़ा था या आपने गाया था? नहीं सर, वो आलम लोहार साहब का है। उसके बाद बहुत से लोगों ने आपकी कॉपी करने की कोशिश की, आलम लोहार की कोशिश की, मगर वो नहीं गा सके। उसकी क्या वजह? उनके रियाज की कमी थी या उनको कोई सही अपना वो पढ़ नहीं सके? उसके हवाले से सर हो सकता है जितनी मोहब्बत से मैंने उनको याद किया उन्होंने ना किया। मैंने शायद कोशिश, मेरी एक्चुअली जो लिविंग लेजेंड्स हैं, जो लेजेंड्स जिन्होंने हमारे लिए सारा विरसा छोड़ा है, जैसे आपने कहा नील कराई या नील का, ये भी जब मैंने किया था तो मुझे पंजाबी का ये वाला जो स्टाइल है जिसको हम झटका स्टाइल बोलते हैं, जैसे खुली आवाज़ में गाना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब मैदानी आवाज़ जिखलोगे कि दूर तक आवाज़ जावे, क्योंकि माइक तो अब आए हैं, अब हम इनको यूज़ करना शुरू किया। पहले तो लोग मैदान में खड़ा होकर गाते थे, और अगर 1000 का मजमा है तो वो जो पीछे भी खड़ा आदमी उसको भी आवाज़ जाती थी। गाया हूँ जी मैं तो बगैर माइक ही, हमें तो मस्जिद का कोई माइक नसीब हो जाता था। अब यकीन कीजिए कि मैं हैरान होती जब मैंने आलम लोहार साहब का ये गाना सुना नील कराई या नील का, तो थोड़ी देर के लिए मैं खौफज़दा हो गई थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, पाक परवरदिगार। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि जो मैदानी स्टाइल था उसमें गाने की कोशिश करूं। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ सर, मैंने कोशिश की, अगर किसी ने कम कोशिश की तो थोड़ी ज़्यादा कोशिश कर लें, तो कर लेंगे। हमारे ही आर्टिस्ट है सारे। इसमें कोई शक नहीं कि सैफुल मुलूक की जो तर्ज, जो पहाड़ी जो तर्ज है वो कहा गया है, बानी है सर इसके, वो इस तरह है। और आलम लोहार की जो वो जो चीज है ना वो नहीं पड़ सकती, वो उसमें जोर इतना लगता है, वो मैं आवाज को इतना लेके फिर जी सर बजा फरमाते हैं आप। मैं कर्ज करता हूँ कि जब मैंने हज़रत मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम शुरू किया तो मुझे पता है कि पोठोहार में पहाड़ी राग में उसको पढ़ा जाता है। वहाँ पे दरबार खड़ी शरीफ जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो दुकानदार है वो भी पहाड़ी में ही पढ़ता है। मैं लाहौर में बैठा हुआ था तो मैंने दोनों बुज़ुर्गों का हाथ से जोड़ी मिला दी। इधर बाबा बुल्ले शाह हैं, उधर मियाँ मोहम्मद साहब सरकार हैं। तो मैंने कहा शौकत अली, पंजाब भैरवी से बाहर नहीं निकल सकते हम। तो उसको मैंने राग भैरवी में मियाँ मोहम्मद साहब के कलाम को शुरू किया। वो जिस दिल अंदर दर्द निरचिया ओ कुत्ते उस थी चंगे मालिक दे दर राखी कर दे ते साबर भूखे नंगे। अब ये तो होगा पहाड़ी में। मैंने इसको भैरवी में किया। जो आप करे से ए दुनिया दे चले
कौन पराया कंधा लिंबे ते केड़ा दीवे बाले। वाह वाह। ओ मैं ना ते तिलकण रस्ता क्यों कर रवे संभाला, थके देवन वाले बोते ओ तू हाथ पकड़न वाला। ओ सियाओ जो आप करे से ओ सियाओ जो आप करे से ए दुनिया दे चाले ते कौन पराया कंधा लिंबे ओ केड़ा दीवे बाले। क्या बात। तो मैंने कोशिश की कि कोई साज वाज ना हो, एक फ्लूट हो, एक सारंगी हो और एक शौकत अली हो, ताकि सरकार हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का अभी इस साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मियाँ उमर बख्श साहब ने तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि वहाँ पे हाज़िरी दो, और मैं वहाँ गया और वहाँ पे हाज़िरी दी। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे तो वहाँ से जो खैर मिला है मियाँ मोहम्मद साहब के दरबार से, वही शौकत अली है। मैं सैफुल मलूक ना गाऊं तो मुझे बड़ी कमी महसूस होती है। अब ये अंदाज़ जो है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस फील की बात है। मैंने रफ़ी साहब को रिकॉर्ड भेजा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी सैफुल मलूक गाया है इसी धुन में। वाह। और मेरी ये भी खुशकिस्मती है सर कि मैं ब्रैडफोर्ड में हूँ और रफ़ी साहब यहाँ से जाते हैं एक खाने पे, हम लोग वहाँ ब्रैडफोर्ड में इकट्ठे हुए हैं रफ़ी साहब के साथ। उनका बेटा मुझे लेके आया और गाड़ी में से एक कैसेट निकाल के बोले कि अबू लंदन से ब्रैडफोर्ड तक सारा मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम तुम्हारा सुनते आ रहे हैं। मैंने कहा कि या परवरदिगार, ये वो मोहम्मद रफ़ी है जिनका गाना मैं क्लास में गाता था, वो जाने वाले बाबू को पैसा दे दे, और वो मेरा गाना सुनते हैं। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साहिया। तो ये जो कुछ भी है मैं आज तक हूँ, ये आप लोगों की दुआओं का सदका हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये जो आपने इज़्ज़त बख्शी है कि आप बैठे हैं, और मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब नहीं कि मैं ज़रा बैठ, मेरा दिल करता है मैं आपके पास बैठ जाऊँ। शौकत अली साहब, आपसे और शाहज़िया मंजूर साहबा से क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे दे कि अगर अल्लाह ताला ही आवाज़ भी देता है और तौफीक भी देता है, तो फिर वही अल्लाह ताला एक दीन इस्लाम भी देता है और वो इस्लाम मौसीकी को हराम करार देता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस सूफीज़म के अंदर रह के आप गाने गाते हैं, तरीक़त और शरीयत की बहस तो बहुत पुरानी है, तो ये तो एक क्लैश सा बना हुआ है, उसको आप किस तरह देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने उम्रा भी किया है और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। मेरी माँ भी नमाज़ पढ़ती है, मेरे बहन भाई भी सारे नमाज़ पढ़ते हैं, और हमारी तालीम शुरू होती है जब छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं, वो भी शाज़िया को पता है कि हम शुरू किस तरह करते हैं। वो हम शुरू करते हैं उस पाक ज़ात के, अल्लाह अल्लाह जल शान अल्लाह, तू रहीम, तू करीम, तू जब्बार, तू सत्तार। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। ये करम ही उन लोगों पे होता है जो पाक ज़ात का जिक्र करते रहें, नाम करते रहें। और आप यकीन जानें कि आज तो ये दौर आ गया है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे लोग कैसेटें सुनते हैं और उस बहर पे वो मेरे मौला का जिक्र लिखवाते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं। तो ये पता नहीं तरीक़त है या क्यों वो इस तरह मना करते हैं। हम तो उस पाक ज़िक्र का सदका गाते हैं, और गाते भी वो है, और जो सुनने वाले हैं वो हमसे ज़्यादा नेक लोग हैं। सर मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपने जैसे जब अभी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, मैं मज़हब बड़ी खूबसूरत बात की, मैं किसी मज़हब की या किसी दीन की बहस में इसलिए नहीं जाना चाहूँगी कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं
کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر ہم غلط ہیں تو ہم معذرت خواہیں. ہماری وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. کہ موسیقی آپ حرام نہیں سمجھتے. سر میں اسی طرف آ رہی ہوں. میں آپ سے یہ کہنے لگی ہوں کہ میں حرام ہے یا حلال ہے ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر ہماری وجہ سے دل آزاری کسی کی ہوتی ہے تو ہم ان سے معذرت خواہ ہیں, اور اگر ہماری موسیقی سے کسی کو اچھا محسوس ہوتا ہے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. رہی بات ہم رفتہ کا تو ذکر ہے نا اس میں. سر ہم ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کیمرہ بیٹھے ہیں, آپ لوگ سب بیٹھے ہیں, کویشچنز ہو رہے ہیں, تو ساز و آواز اگر موسیقی اگر ہم حرام کہیں تو پھر تصویر بھی حرام ہے. آپ کا جو چینل چل رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا فتویٰ لیں گے ہم؟ جانے کو تو سر ایک منٹ سر, جانے کو تو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لائن ڈرا کون کرے گا. اب میں آپ سے جو کہنا چاہتی تھی وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ خدا خود میرے مجلس لامکاں خسرو. آپ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے میرا کلام ہے, مائے میں گاتی ہوں آئے نی میں کنوں آکاں درد وچھوڑے دا حال نی. اب یہاں ماں یا تو میرے گھر کی ہے یا وہ ماں ہے جہاں سے بچھڑ کے آئے ہم. نہ ایک قطرہ بحر بانی سے جدا ہوتا, نہ یہ دنیا بنی ہوتی, نہ یہ عالم بنا ہوتا, تو وہ بندہ کس کو کہتا ہو اور وہ کس کا خدا ہوتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے. ہم شاید اس سے رو کے کہہ لیتے ہیں, گا کے کہہ لیتے ہیں, گنگنا کے کہہ لیتے ہیں. کچھ لوگ تلاوت میں کہہ لیتے ہیں, نماز میں کہہ لیتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, اس کا ذکر بھی کرتے ہیں, فکر بھی کرتے ہیں. اور اگر ہمیں کہیں لگتا ہے کہ ہم اگر اس سے ذرا پالیٹکس سے اور اس سے دین شریعت سے باہر نکل کے آئیں سر, تو زیادہ بیٹر ہے. ہم یہاں پر ایک میسیج لے کے آئے ہیں محبت کا, تو ہم اس کو ادھر سے ذرا ادھر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تھوڑا سا گنگنا لیں. مائے نیک کارن کیتا ایک شکرا یار بنایا, کٹا چوری تیو نت نہ کھاوے تے میں تن دا ماس کھوایا. ایک دن ایسی اڈنی اڈیا مڑ پھر نہ واپس آیا. مائے نی میں کنوں آکاں درد وچھوڑے دا حال نی. مائے نی میں کنوں آکاں. اسپیشلی جو آپ لوگ پردیش میں ہیں, دکھاں دی روٹی سوڑاں دا سالن, دکھاں دی روٹی سوڑاں دا سالن تے آہی دا بالن بال نی. مائے نی میں کنوں آکھاں.